ہمارے آگے آگے چلتا، ہماری رہنمائی کرتا، ہمیں ہر دکھ مصیبت سے بچاتا ہے۔ بنی اسرائیلیوں کی زندگی کے اندر بڑے دکھ تھے، 430 سال تک غلامی کے اندر رہے ہیں، روتے تھے، کرلاتے تھے، اور ان پر ظلم و ستم اٹھائے جا رہے تھے، لیکن اسرائیل کے خدا نے ان کا رونا کیا۔ آج بھی اسرائیل کا خدا ہمارا خدا ہے، یاد رکھیں۔ اسرائیل کا یہوہ باپ ہمارا خدا یسوع مسیح میں باپ ہے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس کی حضوری کے لیے۔ میں محسوس کر رہا تھا اس گھر کے چگرد خدا کی آتشی بات چل رہی ہے، قائم ہے، خدا کی حضوری موجود ہے، مسا ہے، حضوری ہے، جلال ہے، قدرت ہے، معجزے جاری ہیں۔ ہم اپنے معجزوں کو کیسے ریسیو کریں گے؟ اپنا پورا دھیان اس کی حضوری کی طرف لگائیں گے، اپنے خیالوں کو بکھرنے نہیں دیں گے، اپنے جو ہے سوچوں کو باہر نہیں جانے دیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اپنی برکتوں کو ریسیو کریں گے۔ ہماری زندگی کے اندر برکتیں خود بخود نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو اس نئے سال کے لیے۔ یہ سال میں نے لاسٹ ٹائم جب آیا ہوں پچھلے سال کرسمس پر، میں نے کہا یہ سال ہم نے 4 باتوں کے لیے ٹھہرایا ہے کہ یہ سال امن و امان کا سال ہے، ہماری جان و مال کے امن و امان کا سال ہے، یہ سلامتی کا سال ہے، اور یہ سال خدا کی خدمت میں کامیابی سرفرازی کا سال ہے، اور یہ سال 2021 کا سال ہماری زندگیوں، گھرانوں کی، دل کی سب مرادوں کے پورے ہونے کا سال ہے۔ ہاللیلویا۔ متی کی انجیل کے اندر اس کے 18 باب اور اس کی 18 آیت میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا، جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ اور خدا نے فرمایا میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ نئے سال کے پر آپ نے یقیناً خدا کے خادم سے کلام سنا ہے، اور آج پھر خدا نے موقع دیا ہے۔ یہ سیکنڈ سنڈے ہے، سیکنڈ سنڈے خدا نے یہ مجھے فضل بخشا ہے۔ میں خدا یسوع مسیح کا جو قادر مطلق لشکروں کا خدا، ازلی ابدی فاتح بادشاہ، اس کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں، جس نے مجھے میری ماں کے رحم سے انجیل کے لیے مخصوص کیا ہے، اور اس نے میرا نام لے کر مجھے بلایا ہے، اس نے مجھے اپنے کلام کی خدمت بخشی ہے۔ آج اس کے زندگی بخش، نجات بخش کلام کو آپ تک پہنچاؤں گا۔ میرا ایمان ہے آج آپ سب لوگ برکت پائیں گے، اور آپ ایمان کے ایک آگے درجے کے اندر اگلے درجے میں داخل ہوں گے۔ آمین۔ نکالی میرے ساتھ خروج کی کتاب، پرانے احکامہ میں خروج کی کتاب اس کا 20واں باب۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، خدا ان کا شکر، اور جن کو خدا نے یہ برکت دی ہے کہ وہ اردو پڑھ سکتے ہیں، ضرور ہدیہ دیں، خوشی کے ساتھ دیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے ہم ہدیہ نکالیں اور اپنی بائبل مقدس لیں۔ ہمارے پاس اپنا پرسنل خدا کا کلام ہونا چاہیے، پرسنل ڈیووشن کے لیے، پرسنل اسٹڈی کے لیے ہم خدا کے کلام کو، اور خدا ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، خدا کو اس چیز کے اندر بھی انٹرسٹ ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا کو اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، ہماری نیت کے انسائڈ۔ سم ٹائمز ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری نیت کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، ہم دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم جتانے کے لیے، ہم کسی کو وقت پر جو نا وہ جتانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت آئے گا پھر میں اس کو بتاؤں گا، آج میں نیکی کروں۔ سو خدا نیتوں کو دیکھتا اور برکت دیتا ہے۔ نکالی میرے ساتھ خروج 20واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات کی ہم تلاوت کریں۔ جی کوئی بھی بیٹیوں میں سے، بیٹوں میں سے، اسٹوڈنٹس میں سے، بزرگوں میں سے کوئی بھی خدا کے کلام کی تلاوت بلند آواز کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آزادی ہے خدا کی۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ جی آگے بھی چھٹی آیت۔
तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूब खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए खुदावंद के हुजूर में उसकी शफ़क़त रहमत का। आमीन। आज हम खुदा के कलाम में से पहले दो हुक्मों को स्टडी करेंगे। पहली आयत खुदा ने रिमाइंडिंग के तौर पर, याद दहानी के तौर पर बयान की है। क्या की है कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लाया है वो मैं हूं। ये रिमाइंडिंग के तौर पर खुदा अपनी कौम बनी इस्राएल को कह रहा है कि खुदावंद तेरा खुदा। और एक जरा गौर करना, जहां पर भी खुदा मुखातब होता रहा अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, खुदा अपनी रिलेशन को, अपने रिश्ते को जरूर जाहिर करता है। लिखे खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल में तेरा खुदा हूं और तू मेरी कौम है। ये एक रिश्ता खुदा जाहिर करता है ताकि हमें इस बात का एहसास होता रहे कि हमारा खुदा हमारे साथ है। खुदा ने कहा खुदावंद तेरा खुदा तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया, मैं हूं। आई एम द लॉर्ड गॉड, आई एम द लॉर्ड योर गॉड। और यहां पर इसको थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बयान करूंगा। ये जो खरूज की किताब है, हम जिसको कहते हैं शरीयत, शरीयत के अंदर 5 किताबें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है वो कितनी किताबें हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने हकामों में कुल कितनी किताबें? 39 है। लेकिन जब हम शरीयत की बात करेंगे कि शरीयत की कितनी किताबें हैं, तो शरीयत की 5 किताबें। पहली किताब पैदाइश है, खरूज है, एहबार है, गिनती है, हाँ जी, अस्तिस्ना है। ये 5 किताबें मर्दे खुदा मुकद्दस मूसा ने लिखी, खुदा ने उसके वसीला से लिखवाई। और कोई सीना के ऊपर ये हुक्म खुदा ने दिए अपने बंदा मूसा को। मूसा उस वक्त अपने जमाने का सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता शख्स था, तमाम मालूम उसको सिखाए गए थे। ये 10 जो हुक्म हैं 2 तख्तियों के ऊपर खुदा ने अपने हाथों से लिखे हैं। कुल खुदा ने जो हुक्म दिए, कवानीन दिए कौम बनी इस्राएल को, अपनी कौम को, वो कुल 613 कवानीन थे, 613 हुक्म थे। लेकिन उन 613 में से सबसे पहले 10 हुक्म खुदा ने दिए और ये खुदा ने अपने हाथ से लिखे, 2 तख्तियों पर लिखे। कुछ बाइबल मुफस्सिरीन कहते हैं कि एक पहली तख्ती पर लो पर 5 हुक्म और दूसरी के ऊपर 5 हुक्म, इस तरह से 10 हुक्म लिखे गए। कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि नहीं, पहली तख्ती के ऊपर 4 हुक्म लिखे गए और दूसरी तख्ती के ऊपर 6 हुक्म खुदा ने लिखे। हाँ, हम इस बात के ऊपर मैं इत्तेफाक करता हूं कि खुदा ने जो 2 तख्तियां, ये तो कंफर्म है 2 तख्तियां, पहली के ऊपर डेफिनेटली 4 ही हुक्म। उसकी वजह कि पहले 4 हुक्मों का जिक्र जो है ताल्लुक खुदा की जाते मुकद्दस के साथ है। पहले 4 हुक्म का ताल्लुक खुदा की जात के साथ है, खुदा की जो वो कदूस जात के साथ है। और अगले 6 हुक्मों का ताल्लुक इंसान के साथ है, इंसानी रिश्तों के साथ है और खानदानी रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है। पहले 4 हुक्मों के अंदर खुदा ने अपनी ताज़ीम के ताल्लुक से,
اور اپنی قدوسیت کے تعلق سے، اپنی عبادت کے تعلق سے رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلا حکم کہاں ہمیں ملتا ہے؟ دوسری آیت کے اندر لکھا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہ 10ویں حکم میں سے پہلا حکم یہ ہے، خروج 20 باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر صرف ایک جملہ، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ اب کون فرما رہا ہے؟ خداوند ہمارا خدا۔ پرانے عہد نامہ کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں جی خداوند یسوع مسیح نے فدیہ دے دیا، اب ہم پر شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ کون سی چیزیں لاگو نہیں ہوتی؟ شریعت کے اندر، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر کچھ اقتصادی حکم ہے، کچھ جو وہ سماجی حکم ہے، اور کچھ جو ہے روحانی حکم ہے۔ روحانی احکامات میں سے، مذہبی احکامات میں سے جو قربانیوں کا سلسلہ ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے اندر وہ جو ہے تکمیل ہوتا ہمیں نظر آتا ہے۔ قربانیوں کی 5 قربانیوں کی تکمیل جو ہمیں صلیب کے اوپر خدا یسوع مسیح کے اندر نظر آتی ہے، پوری ہوتی ہوئی۔ سو باقی جو حکم ہیں اخلاقی احکامات ہیں جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے، خاندانی سماجی احکامات ہیں جن کا تعلق جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، یہ آج بھی ہم پر لاگو ہیں۔ اور یہ جو 4 حکم ہیں آج بھی ہم سب پر لاگو ہیں۔ اور باقی جو 6 حکم ہیں وہ بھی ہم سب پر لاگو ہیں۔ 10 احکام جو بنیادی احکام ہے نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ آج کے اس فضل کے دور کے اندر جتنے لوگ زندہ ہیں ان سب پر یہ 10 احکامات لاگو ہیں۔ میں نے آلریڈی بتایا بائبل مقدس میں جہاں ورڈ آتا ہے خدا، تو خداوند سے مراد ہے یہوہ۔ خداوند کے لیے جو ورڈ استعمال کیا گیا یہوہ، اور عبرانی کے اندر اس کے لیے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں اور یونانی کے اندر اس کے لیے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں کریوس، اور عبرانی کے اندر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے یاوے۔ ہمارا خدا، ہمارا آسمانی باپ عبرانی میں یاوے اس کو کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو جو گورے پروناؤنس کرتے ہیں یہوہ۔ اردو کے اندر جو اس کو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہوہ۔ سو خداوند سے مراد ہے یہوہ، اور یہوہ کا مطلب ہے جو نجات دیتا ہے، جو نجات دیتا ہے، زندگیاں بچاتا ہے۔ اور خدا کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا خدا، اس کا مطلب ایلوہیم۔ پیدائش کے اندر پہلے باب میں 50 دفعہ خدا کا ورڈ جو آیا ہے وہ ایلوہیم کے طور پر استعمال کیا گیا۔ خدا تخلیق کرتا ہے، خدا بناتا ہے چیزوں کو، خدا تخلیق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور تمام مخلوقات، تمام عالم خدا نے اپنے منہ کے کلام سے بنائے۔ خدا قدرت رکھتا ہے چیزوں کو تخلیق کرنے کی۔ خدا کہتا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، اور یہ حکم ان کے لیے بھی تھا، آج ہم پر بھی لاگو ہے، یاد رکھیے گا ذرا۔ میں نے کچھ اپنی زندگی کے اندر دیکھا کہ سم ٹائمز خاندانوں کے اندر زندگیوں میں مصیبتیں آتی ہیں، یا مصیبتوں کے پہاڑ جب ٹوٹتے ہیں اور وہ عرصہ لمبا ہو جاتا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو کچھ لوگ اس حالات کے اندر مجبور ہو کر ایمان کی کمی کے سبب سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم غیر معبودوں کی طرف جائیں، پیروں کے پاس جائیں۔ اور کون آتے ہیں؟ جس طرح خدا کے فرزند ہے اسی طرح اس کے پیروکار آتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں جی وہاں پر سیانا ہے، سیانا سب کچھ بتا دو اور پیسے بھی نہیں لیتا۔ دیکھیں ذرا موٹیویٹ کیسے کیا جا رہا ہے، کیسے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ جال کی خوبصورتی دیکھیں، کوئی پیسہ نہیں لیتا جی، کچھ بھی نہیں مانگتا، بڑے لوگ کے جی لوگوں کو دس دیتا جی،
लोगों को सारा कुछ मुझसे बोलता अगला पिछला हाथ। इस आलम के अंदर लोग फंस जाते हैं और गैर मबूदों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन याद रखिए, गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम भरता है, वहां पर मौत, बर्बादी, हलाकत, जवाल उनका इंतजार कर रहा होता है। अगर कोई जिंदगी बख्शता है, अगर कोई खुशी देना चाहता है, अगर कोई शादमानी देने की कुदरत रखता है, वो हमारा यहोवा बाप है। और खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए जमीन पर भेजा, और उसने आकर फरमाया यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब के अंदर, उसकी 10वें, कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। आमीन, आमीन। ये कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। ये यहोवा ही है जो बेटे की सूरत में मुजस्सम होकर, खुदा की कुदरत को हम माप नहीं सकते। खुदा की कुदरत हमारी अक्लों से, हमारी सोचों से भी बालातर है। हमने तो सिर्फ खुदा के उन पहलुओं को स्टडी किया है जो उसने अपने कलाम के वसीले से हम पर ज़ाहिर किए हैं, लेकिन खुदा के ऐसे करोड़ों करोड़ों पहलू ऐसे हैं जिनको अभी तक हम नहीं जानते। दूसरे हुक्म पर आते हैं। दूसरे हुक्म के अंदर लिखा है कि कोई तराशी हुई मूरत नहीं बनानी, कोई सूरत नहीं बनानी। हमारे घरों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर कोई सूरतें, कोई मूर्तें नहीं होनी चाहिए, और ये गुनाह है। मुजस्समा साजी करना गुनाह है, खा वो खुदा के ताल्लुक से या मुकद्दसीन के ताल्लुक से, क्योंकि मुजस्समा साजी जो है वो बुत परस्ती के अंदर आ जाती है। हमारे घरों के अंदर जो सलीबें होनी चाहिए वो खाली सलीबें होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह एक ही बार मसरूफ हुआ और मर गया, और कलाम मुकद्दस के मुताबिक तीसरे रोज बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और उसके जिंदा होने के दो निशान हैं। उसकी कब्र आज भी यरूशलेम के अंदर खाली है और उसकी सलीब आज भी खाली है। हालेलुया। ये हमारे लिए फख्र की बात है। हमारे मुनज्जी, हमारे खुदाम की कब्र आज भी जो यरूशलेम के अंदर खाली है। दुनिया की तमाम कब्रों में से, और बनी इंसान जब आया इस दुनिया के अंदर, आदम से लेकर आज तक जितने भी इंसान मर गए हैं, उन तमाम दुनिया की कब्रों में से फकत एक ही कब्र खाली है, और वो हमारे मुनज्जी नजात हिंदा खुदा यीशु मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात के ऊपर फख्र होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना। खुदा ने ये जो हुक्म दिए हैं, पहले दो हुक्म, खुदा अपने कलाम के ताल्लुक से बहुत संजीदा है और बहुत संजीदा है, और खुदा अपने कलाम के हक में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अजीम से अजीम खुदा ने लोगों को अपना खादम बनाया, रसालत का रुतबा दिया, नबी का रुतबा दिया, लेकिन खुदा अपने कवानीन के ताल्लुक से कंप्रोमाइज नहीं करता। खुदा ने कहा तू गैर मबूदों को ना सजदा करना और ना उनकी इबादत करना। गौर करें, जो गैर मबूदों की तरफ जाते हैं, दरबारों पर, कब्रों पर क्या करते हैं? सबसे पहले माथा टेकते और उनको सजदे करते हैं। और सजदा कहते किसको है? जब हम अपनी पेशानी, सर का अगला हिस्सा पेशानी, फोरहेड, हम ये अपनी पेशानी जब जमीन पर टेक देते किसी के आगे, तो इसका मतलब है हम उसको सजदा कर रहे हैं। माथे को टेक देना किसी के आगे वो सजदा कहलाता है। सजदा दो तरह से किया जाता है, घुटनों के बल होकर हम अपना माथा टेक दे किसी के सामने, या हम ऊंधे मुंह होकर अपना माथा टेक दे किसी के आगे, इसको सजदा कहते हैं।
सो खुदा ने कहा कि तुम गैर मबूदों को ना तो सजदा करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदा तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। और गयूर से मुराद है जो अपने कदूस नाम की गैरत अपने अंदर रखता है, अपने कदूस नाम की गैरत हम अपने अंदर रखता है, और जो उससे अदावत रखते हैं, उससे अदावत रखने वालों की सजा के हैं तीसरी और चौथी पुश्त तक उनके बाप दादा की बदकारी की सजा देता है। मैं खुदा तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे दावत रखते हैं उनकी जो तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। वो बनी इस्राएली कौम हो या हम आज इस फजल के दौर के लोगों, याद रखिएगा हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के बेशकीमत लहू से छुड़ाएंगे और बचाएंगे अगर हम सरकशी करेंगे, अगर हम खुदा के साथ दावत रखेंगे। दावत से मुराद है उसके कलाम को रद्द करना, उसके हुक्मों को पीछे करना और अपनी मर्जी करना। तो याद रखें वो शख्स खुदा से दावत रखता है और दावत रखकर चल रहा है। और खुदा फरमाता है देख मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, अपने नाम की गैरत अपने अंदर रखता हूं और दुश्मनों को नहीं छोड़ता। मैं उनको जो रगेड़ता हूं, अदालत में लाता हूं, नेस्त करता हूं। और नहूम के सहीफा के अंदर उसके पहले बाप में उसकी पहली दो याद के अंदर खुदा की गयूरियत के ताल्लुक से, गयूरी क्या है निकालिए जरा, नहूम का सहीफा उसका पहला बाप उसकी पहली दो याद। हम खुदा की गयूरी को देखते हैं, खुदा कैसा गयूर खुदा है, और जो उससे दावत रखते हैं उसके ताल्लुक से नहूम पहले बाब उसकी पहली दो आयात के अंदर क्या फरमाया गया है। जी कोई भी जो निकाल लेता है वो बुलंद आवाज के साथ तिलावत कर सकता है। नहूम का सहीफा पहला बाब उसकी पहली दो आयात। नैनवा की बाबत बारे नबूवत अलकुशी नमून की रोया की किताब। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कहार है। खुदावंद अपने मुखालफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। आमीन आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा गयूर है और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ खुदा कहार है, कहर को कायम रखता है और अपने दुश्मनों से बदला लेता है जो उससे दावत रखते हैं, जो उसके हुक्मों को रद्द करते, गैर मबूदों के पीछे भागते, गैर मबूदों के पीछे जाते हैं और औरों को भी दावत देते। याद रखे खुदा फरमाता है मैं गयूर खुदा हूं, जो मुझसे दावत रखेंगे मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनसे बदला लूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे कलाम को रद्द किया है। और देखें जिस कौम को खुदा ने मुल्क मिस्र की गुलामी में से बड़ी कुदरत के साथ निकाला और खुदा उनके आगे आगे दिन के वक्त बादल का सुकून, रात को आग के सुकून के अंदर उनकी रहनुमाई करता रहा। खुदा खुश्क चट्टानों में से बनी इस्राएलियों को पानी मुहैया करता रहा। बियाबान के अंदर ना उनकी जूतियां टूटी हैं, ना उनके कपड़े फटे हैं और उनको मन और बटेर खुदा खिलाता रहा। अगर इस कौम ने जिसके हक में खुदा ने कहा कि इस्राएल मेरा पनौठा बेटा है, मैं इस्राएल का बाप हूं, मैं इस्राएल का खुदा हूं और ये मेरी कौम है, मैंने इन्हें चुना है, मैंने इनके बाप दादा के साथ अहद बांधे हैं, मैं अपने अहद को कभी नहीं भूलता, मैं अपने कलाम में सच्चा हूं। और जब बनी इस्राएलियों ने खुदा की यह कलाम की खिलाफ वर्जी की है, खुदा के कलाम को रद्द किया है, गैर मबूदों के पीछे चले हैं, गैर मबूदों के मुजस्मों को, उनकी यसीरतों को उन्होंने बनाना शुरू किया, तो खुदा का कहर नाज़िल हुआ। खुदा ने अपने इस कलाम को पूरा किया। यिर्मयाह के सहीफा के अंदर देखे उसके पहले बाब में उसकी 18वें आयत में खुदा फरमाता है मैं आप उनकी सारी शरारत के बाद उन पर फतवा दूंगा, मैं आप उनकी सारी शरारत के बायस उन पर फतवा दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे कलाम को रद्द किया और गैर मबूदों के आगे लुबान जलाया और अपने ही हाथों की दस्तकारी को सजदा किया है। और खुदा ने अपने बंदा से कहा यिर्मयाह तू क्या देखते हैं? उसने कहा खुदा मैं एक देग ऊपर की देग देखता हूं जिसका रुख शुमाल की तरफ है।
खुदावंद ने कहा यिर्मयाह तो खूब बिल्कुल ठीक देता है, अब मैं शुमाल की तरफ से, जब बाबल की तरफ से नबूकदनेस्सर बादशाह को लाऊंगा और इन पर वो चढ़ाई करेगा और इनको रगेद देगा, इनको सीरी के अंदर लेकर जाएगा, और ये कौम जिन्होंने मेरे कलाम को रद्द किया है, मेरी जो वो मेरी तजलील की है, मुझे इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ये अब 70 साल की असीरी के अंदर जाएंगे। ये वो कौम है जो अब असीरी के अंदर जा रही है। यहूदा के लोग, यहूदा के मुल्क के लोग, जिसके अंदर नबी भी चले गए असीरी में, शहजादे भी चले गए, काहिन भी चले गए, बादशाह को भी उन्होंने रगेदा, और नबूकदनेस्सर बादशाह ने, जो उस वक्त का बादशाह था, उसकी आंखों के अंदर सलाखें जो वो घसेड़ी और उसको अंधा कर जब जंजीरें पहनाकर घसीटता हुआ बाबल की तरफ लेकर गया। उसके अंदर नबी असीरी के अंदर गया, हिजकिय्याह नबी गया, दानियेल नबी असीरी के अंदर गया। मासा खुदा ने एक नबी को पीछे छोड़ दिया, और वो यिर्मयाह था, ताकि खुदा इसको इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए। मेरे अजीजों याद रखें, वो कौम जो खुदा की पसंदीदा प्यारी है, और जिसको खुदा कहता है कि मेरी आंख की पुतली की मानद है, खुदा के खिलाफ जब इन्होंने भी गुनाह किया है, तो खुदा अपने कलाम का, जब वो अपने कलाम पर लिहाज नहीं करता, खुदा ने उनको भी सजा दी है। और आज हम इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हमारा खुदा हमसे क्या फरमाता है कि फकत खुदावंद अपने खुदा को सजदा करना और उसी की इबादत करना हम पर ये लाज़िम है। और ये दूसरे हुक्म का जो खुलासा है वो ये है कि हम फकत खुदावंद अपने खुदा को सजदा करें और उसी की बंदगी करें, उसके अलावा अपने माथे को किसी और के आगे न झुकाए। मेरे अजीजों, उसके अलावा किसी के आगे न अपने आप को नीचा करें। हालात कैसे भी हो, आप किसी भी असीरी के अंदर जिंदगी बसर करें, दुखों की असीरी है, मुसीबतों की असीरी है, बीमारी की असीरी है, लाचारी की असीरी है, असीरी किसी भी किस्म की है, लेकिन फकत अपने खुदा को सजदा करना शुरू कर दें। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि ये कौम जब 70 साल की असीरी के अंदर गई है, तो दानियेल नबी अपने खुदा को ही सजदा करता है। खुदा ने इसे इज्जत बख्शी है, और इसकी कंप्लेन बादशाह तक पहुंची है, जब जो हुक्म सादर किया गया है कि कोई शख्स आए और मेरे ख्वाबों को भी बयान करे और उसकी ताबीर भी करे। बादशाह ने कहा, मैं तमाम साहिरों को, जादूगरों को, भेद बयान करने वालों को और सितारों के इल्म रखने वालों को मैं हलाक कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा, अगर कोई मेरा ख्वाब बयान ना करे। बादशाह ने ख्वाब देखा, परेशान हो गया। ये बात दानियेल नबी तक पहुंची, उसने कहा मुझे मोहलत दी जाए। उसने अपने खुदा की हजूरी में लिखा है, अपने जो दोस्तों को लिया, खुदा की हजूरी में झुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। और खुदा ने जो भेदों को खोलने वाला, राजों को खोलने वाला है, खुदा ने दानियेल नबी पर बादशाह का ख्वाब बयान कर दिया और उसकी ताबीर भी बयान कर दी। जब बादशाह के सामने दानियेल नबी आया, तो दानियेल नबी ने कहा, बादशाह मैं तेरा ख्वाब भी बयान करूंगा और तेरे ख्वाब की ताबीर भी बयान करूंगा। इसके अलावा जितने भी लोग थे, जितने भी आलम फाजल थे, वो यही कहते थे कि ये बादशाह हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि कोई तेरा ख्वाब भी बयान करे जो तूने देखा है और उसकी तबीर भी करे। तू अपना ख्वाब बयान करे, हम तबीर करेंगे। बादशाह कहता नहीं, मैं तबीर उसकी मानूंगा जो मेरे ख्वाब को भी बयान करेगा, वो तबीर सच्ची होगी। दानियेल नबी आया और उसने सबसे पहले बादशाह को उसका ख्वाब बयान किया कि बादशाह, जब तू अपने पलंग पर सो रहा था तो उस रात तूने ये ख्वाब देखा। और जब ये बयान दानियेल नबी ने बादशाह के सामने उसका ख्वाब बयान किया और उसकी तबीर की, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है,
बादशाह कदमों के बल होकर जो है उसके आगे झुक गया और दानियल को उसने सजदा किया और उसने कहा, दानियल का खुदा फिल हकीकत मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला खुदा है। हालेलुया। फिल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदावंद है और भेदों का खोलने वाला खुदा है। और दानियल को सजदा किया और हुक्म सादर किया, दानियल को हदिया दिया जाए। दानियल का खुदा ही कदूस खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। ये कब मुमकिन है? जब हालात बदलेंगे, मुखालफत चलेंगी और आप अपने खुदा को सजदा करना नहीं छोड़ेंगे तो खुदा आप पर सब कुछ हया करेगा। दूसरी बात, सिद्रक मेसक और अब्दनजो के ताल्लुक से सोने की मूरत बनवाई गई है, हुक्म सादर किया जब मुकर्रर वक्त पर हर तरह के साज बजना शुरू हो जाए तो मुल्क का हर एक बशिंदा इस मूरत के सामने झुककर इसकी तरफ रुख कर इसको सजदा करे। लेकिन तीन असीर मर्द ईमान सिद्रक मेसक अब्दनजो ये सजदा नहीं करे। इनकी कंप्लेन भी बादशाह तक पहुंची है। बादशाह ने तलब की अपने दरबार के अंदर, बादशाह ने कहा उनको तलब किया जाए। और जब वो बादशाह के सामने आए हैं और बादशाह ने दरियाफ्त किया कि क्या ये बात ठीक है कि तुम इस मूरत के आगे झुककर इसको सजदा नहीं करते, तो इन तीन इमाम की सुरमा में जवाब क्या दिया? इन्होंने कहा इस अमर में ए बादशाह तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। और ये बात उन्होंने, ये जुमला अक्कासी कर है, ये बात जो उन्होंने की है बादशाह की आंखों में आंखें डालकर की है कि इस अमर में हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। बादशाह तुझे मालूम हो कि ना हम तेरे इस मूरत को सजदा करेंगे और ना तेरे आगे झुकेंगे। हमारा खुदा हमें आग से भी छुड़ाने की कुदरत रखता है और तेरे हाथ से भी बचाने की कुदरत रखता है। हम अपने खुदा ही को सजदा करेंगे। बादशाह के लिए बात बहुत ज्यादा इंसल्ट है, उसकी बेइज्जती है। उसके उमरा के सामने, उसके दरबार के अंदर उमरा बैठे हैं और बहुत सारे लोग जमा हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ है कि इन तीन जो मुजरिमों को पकड़ कर लाया गया है और ये बादशाह का हुक्म जो है वो रद्द करते हैं और सोने की मूरत को सजदा नहीं करते। लेकिन इन्होंने कहा हम अपने खुदा के अलावा किसी और को सजदा नहीं करेंगे, ना तेरी इस बनाई हुई मूरत को सजदा करेंगे। ऐ बादशाह ना तेरे आगे झुकेंगे। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं वो हमें आग से भी छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो हमें तेरे हाथ से भी बचाने की कुदरत रखता है। बादशाह का गुस्सा बढ़ता है। उसने कहा आग को 7 गुना बढ़ा दो। इस आग की आंच को 7 गुना बढ़ा दिया गया है और हुक्म सादर के इनको उस आग के अंदर डाल दिया। इनके हाथ बांध दिए गए। उनको जो फेंकने वाले इनके साथ गए थे वो उस आग की तपश के अंदर वो भी मार गए हैं। लेकिन इन तीनों को जब आग में फेंका गया है तो ये लोग जो तीन थे इनके हाथ बांधे हुए थे, आग के अंदर इनके हाथ खुले हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथ खुले नजर आ रहे हैं और ये आग के अंदर मूव कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। लेकिन इन तीन लोगों के साथ एक चौथा शख्स भी मौजूद है जो इनके साथ चहलकदमी कर रहा। बादशाह ने गौर किया और बादशाह ने इस बात को घबरा कर पूछा कि क्या हमने आग के अंदर 3 लोग नहीं फेंक पाए, लेकिन मैं 4 लोगों को खुले हाथ फिरते देख रहा हूं। बादशाह ने जब चौथे पर नजर की, तीनों से तो बाखूबी वाकिफ था, चौथे पर जब नजर की तो उसने क्या कहा? चौथे की शक्ल इलाज़ादा की शक्ल है। हालेलुया। चौथे की शक्ल खुदा के बेटे की सूरत है। खुदा का बेटा जिसका नाम इम्मानुएल है, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ, वो खुदा का बेटा अपने लोगों के दरमियान आ मौजूद हुआ है और उसने इन लोगों को आग में से बचाया है। और उसने ये आवाज दी,
सिद्रक मेसक अब्दनजू के नजू है हक ताला के बंदो बाहर निकल आओ, क्योंकि सिद्रक मेसक अब्दनजू का खुदा मुबारक है जो आग से भी बचाने की कुदरत रखता है और हर एक चीज से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया हालेलुया। गौर कीजिएगा, जो सर, ये मेरा अपना जाती तजर्बा है, जो सर खुदा जिंदा खुदा की हजूरी में झुकते हैं, उसे सजदा करते हैं, यहोवा कादरे मुतले खुदा जो गयूर खुदा है उन सरों को किसी और के आगे कभी झुकने नहीं देगा। ये बात नोट कर लें, यहोवा कादरे मुतले खुदा जो जंग में जोरावर है, जो कवि और कादर है, वो उन सरों को किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। हालात आएंगे आपको झुकाने के लिए, मुसीबतें आएंगी आपको झुकाने के लिए, लेकिन वो कमजोर पड़ जाएंगी और वो आपके कदमों के आगे झुक जाएंगी, वो आपको सजदा करेंगी और खुदा को उन पर फतह बख्शेगा। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर हम खड़े हों और इस बात को आज इस साल याद कर लें। आज से हमने जब भी इबादत करनी है, जब भी खुदा की हजूरी में आना है, तो हमने अपने खुदा को सजदा करना है और इबादत का पहला जो अहम रुकन है, अहम हिस्सा है, वो सजदा है, वो सजदा है। हमने इस बात को कलीसियों के अंदर पीछे छोड़ दिए है कि इबादत के दौरान हम खुदा को सजदा करें। मजूसियों ने यह कहा कि हम पूरब से सितारा, उसका सितारा देकर उसको सजदा करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। वो सिर्फ बादशाह नहीं, बादशाहों का बादशाह है। वो सब बादशाहों पर, हमारा खुदा सब बादशाहों पर कादर खुदा है। सब बादशाहतें, हुकूमतें, इख्तियारात, सल्तनतें, फरिश्ते सब हमारे खुदा यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार हमारे खुदा यीशु मसीह के पास है और उसके हुक्म से हर एक चीज लर्जा होती है। वो हुक्म फरमाता और हो जाता है। मेरे सीसो चाबी घर में दुआ करें तो सबसे पहले झुके। हम एक छोटा सा कारपेट रखा हुआ, हम झुकते हैं, नीचे आते हैं, हम सजदा करते हैं। जब मैं सजदा कर, मेरी बेटी भाग कर आ जाती है, वो भी झुक जाती है। खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है जो उसके इस हुक्म को पूरा करते हैं कि ना तो हमने गैर मबूदों के पीछे जाना है, ना उनको सजदा करना है, ना उनकी इबादत करनी है। हमने तो फकत खुदा, अपने खुदा ही को सजदा करना और उसी की इबादत करनी है। फिर देखे उसकी कुदरत, उसका जलाल। वो फरमाता है जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं उन हजारों पर उनकी हजार पुश्ता का रहम करता और उन्हें बरकत देता हूँ। खुदा बरगज़ीदों को हजार पुश्त तक बरकत देता है। हजार पुश्त तक बरकत नस्ल दर नस्ल चलती जाती है और वो बरकतें बढ़ती चली जाती हैं। आए अपने हाथों का समान की तरफ बुलंद करें और उस यहोवा बाप का शुक्र करें जिसने हम पर हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने इकलौता बेटा हमारी अबदी नजात के लिए उसने कुर्बान कर दिया।